आप भी सुनते चलना. Yes, yes. So our today's experiment is regarding actually this is a combination of three experiments, in which we are going to use meter bridge. This device is called as your meter bridge, and we are going to learn three different experiments. First experiment is to find out the resistivity of a given wire. Now here we are given a wire, you can see naked wire, and this wire is of certain material. I don't know what is the material. You may be given the name of the material, you may not be given the name of the material in your exams. So you are given some wire of certain material, and you have to find out its resistivity using this device meter bridge. The next experiment that we will be learning is that with the help of two resistances, here are two resistances. One is suppose a 5 ohm resistance, another is a 10 ohm resistance. This is a 10 ohm resistance, this is a 5 ohm resistance. Let us assume it is not known to me. Okay, although it is given that the resistance values are written on it, but let us assume this is not known to us. They are two unknown resistances for us. We are going to study the laws of series combination and parallel combination. We are going to verify the laws of series and parallel combination, which says that if you have two resistances connected in series, the equivalent of the two resistances given by R is equal to R1 plus R2. And when connected in parallel, the equivalent resistance is given by the sum of the reciprocals is equal to the reciprocal of the equivalent. So we are going to verify that law with the help of these two resistances and meter bridge. So first of all, we will learn about the first experiment, that is to find out the resistivity of this given wire with the help of this meter bridge. But let us first of all learn that this meter bridge is based on what principle? What is the basic principle of this device? ये किस principle पे काम करता है? And the basic principle on which this meter bridge works is known as Wheatstone bridge. वो हमारा theory में एक topic भी है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं आगे. तो Wheatstone bridge क्या है? Let me explain first of all what is a Wheatstone bridge. So let us come to this topic. Now here you can see I have shown a circuit diagram. This circuit diagram is called as a Wheatstone bridge. Okay. Now what do we see in this Wheatstone bridge? In the Wheatstone bridge you can see one rectangular loop, and in this rectangular loop there are four resistances I have connected. The names of the resistances I have mentioned are P, maybe some P ohms, Q, R and S. See how they are connected? P and Q on these two upper arms of this rectangular loop, R and S on the lower arms. Not in the order P and Q, R and S. Right? Now this rectangular loop has two diagonals. One is diagonal BD, another is diagonal AC. Right? Now what I have done is across one of the diagonal, that is say BD, I have connected a device called as galvanometer. Now in your apparatus this is called as galvanometer, and on this galvanometer you can see it's written as G, and this galvanometer is a device in which you can see a needle which shows deflections on both the sides. It may show a deflection to the left as well as to the right when you pass a current through it. Now galvanometer is a device. We will be learning about what is the basic structure of galvanometer, what principle on which it works, all the things we will be learning later on in the theory. But for time being, let me just tell you, galvanometer is just a device to detect current. वो करंट को डिटेक्ट करता है, ओके, वो करंट को मेजर नहीं करता, राइट? Galvanometer is a device which only detects current. It does not measure any current. We will learn in the theory part how will we able to convert a galvanometer into an ammeter, or how can we convert it into a voltmeter. वो सब theory में पढ़ेंगे. Now you can see in a galvanometer the needle is in the center on zero mark, and when you pass a current it may get deflected to the right or it may get deflected to the left depending upon in which direction you pass the current. Now here some readings are visible like 10, 20, 30 divisions are here on the right hand side, 10, 20, 30 divisions are on the left hand side. These divisions do not represent any value, right? 10 divisions or 20 divisions of deflection means some current is there, but what is the magnitude of current which we cannot write here. Even though if we calculate, you see some values are written, that I will tell you in theory part how can we with the help of the readings which is given in that we can even calibrate it. हम इसमें values को mark कर सकते हैं,
है ना। अभी वो टाइम बिंग हमारे लिए सिर्फ ये है कि देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिविजन्स मीन्स सम करंट, बट इफ द डिफ्लेक्शन बिकम्स 20 डिविजन्स मीन्स द करंट हैज़ डबल्ड। बट पहले कितना था, अभी कितना हो गया, हम दोनों को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आई सेड इट इज़ अ डिवाइस फॉर अस विच ओनली डिटेक्ट्स करंट, इट डजंट मेजर एनी करंट। हमारा काम इससे सिर्फ करंट को डिटेक्ट करवाना है, ये पता करना है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो नो डिफ्लेक्शन विल बी देयर, हो रहा है डिफ्लेक्शन लेफ्ट या राइट, दैट मीन्स देयर इज ए करंट। क्लियर। नाउ इसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया अक्रॉस वन डायगोनल एंड अक्रॉस अनदर डायगोनल दैट इज से ए टू सी, डायरेक्टली नहीं कनेक्ट करके मैंने एक, देखिए ये वाला पाथ चूज़ कर लिया जो ए से सी के थ्रू है कि किससे कनेक्टेड है। बट इस रास्ते में क्या कनेक्ट किया हमने, वन सोर्स ऑफ ईएमएफ। हमारा सोर्स ऑफ ईएमएफ हमारे अपैरेटस में ये एक लेक्लांची सेल है। दिस डिवाइस विल बी कॉल्ड एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि एक ब्लैक कलर्ड कार्बन रॉड दिखाई पड़ रही है, एंड दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल विच इज़ अ जिंक रॉड, ठीक है। दिस इज़ अ सिंपल सेल जो आपके घरों में हम लोग ड्राई सेल्स यूज़ करते हैं, बैटरीज जो सेल्स यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड एज लेक्लांची सेल्स, है ना। सेम डिवाइस यहाँ पर एक पोर्टेबल फॉर्म में बना दिया गया है, सॉरी एक रिचार्जेबल फॉर्म में बना दिया गया कि आप इसके केमिकल्स को बार बार चेंज करके इसको दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, राइट। तो ये नेगेटिव टर्मिनल जिंक रॉड, ब्लैक इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल, दिस सेल इज नोन एज अ लेक्लांची सेल। तो हमारे सर्किट में एक सोर्स है और साथ में मैंने एक की कनेक्ट किया, सर्किट ब्रेकर, मतलब सर्किट को ऑन करना है या फिर ऑफ करना है। सो ये हमारा एक सर्किट जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये मीटर ब्रिज इसी व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, राइट। तो लेट अस लर्न व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या खास बात है, इस सर्किट में ऐसी खास बात क्या है। इस सर्किट में जो मैंने आपको चार रेजिस्टेंसेस दिखाए P, Q, R एंड S, अगर ये चार रेजिस्टेंसेस का हम कोई खास सिलेक्शन करें, कोई खास वैल्यूज़ के रेजिस्टेंसेस चूज़ करें, कैसे, ऐसे कि जो P रेजिस्टेंस और Q रेजिस्टेंस का रेशियो है, मतलब मैं कोई वैल्यू बोल नहीं रहा हूँ, बट आप चूज ऐसा कुछ करें कि जो P वैल्यू है और Q वैल्यू है इसका जो रेशियो है, फॉर एग्जांपल 4 ohms, P इज सपोज 4 ohms, 12 इज सपोज 12 ohms, तो रेशियो इज 4:12 मीन्स 1:3। सिमिलरली इफ यू चूज R एंड S ऑफ सर्टन वैल्यूज कि उसका भी जो रेशियो है R/S, R:S, वो एग्जैक्टली P/Q के इक्वल हो जाए। जैसे 4 एंड 12 चूज कर लिया तो आपने यहाँ पर 5 एंड 15 चूज कर लिया, उसका भी रेशियो 1:3 हो गया। अगर ऐसे आपने चार रेजिस्टेंसेस चूज किए कि P/Q बिकम्स इक्वल टू R/S, तो मैंने ये लिखा P/Q इज इक्वल्स टू R/S। अगर ऐसा आपने कोई चार रेजिस्टेंस का सेट चूज किया इस व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो क्या होगा कि जब आप इस सर्किट को ऑन करेंगे, इसमें से करंट पास करेंगे थ्रू A एंड C टर्मिनल्स, व्हाट विल हैपन कि पॉइंट B एंड D विल नेसेसरीली बी इन सेम पोटेंशियल, उन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल्स हमेशा सेम होंगे, सिर्फ इसी कंडीशन में होंगे कि जब आप P और Q और R/S का रेशियो इक्वल चूज करें। और कोई रेशियो अगर आपने बना दिया, अगर वो रेशियोज इक्वल नहीं है, देन नेवर यू विल सी कि B एंड D विल बी एट सेम पोटेंशियल। और अगर दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल सेम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो मैं अगर उन दोनों पॉइंट्स को किसी डिवाइस से जो कि करंट मेजर कर सकता है कनेक्ट कर दूं, जो गैल्वेनोमीटर है, तो व्हाट विल दिस गैल्वेनोमीटर शो मी, इट विल शो नो डिफ्लेक्शन, मतलब उसके बीच में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब P/Q R/S के इक्वल हो जाए और गैल्वेनोमीटर B एंड D के बीच में जो हमने कनेक्ट किया वो डिफ्लेक्शन ना दिखाए, तो वी से द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। सच ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज कॉल्ड एज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो हम अपने डिवाइस में एक ऐसा ही बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्रिएट करना चाहेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर P और Q का रेशियो R/S के इक्वल हो गया, एज आई हैव सेड VB विल बी इक्वल टू VD, दैट मीन्स करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, जो मैंने यहाँ से B और D के बीच में करंट का नाम लिखा है IG लिख लिया, IG स्टैंड फॉर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, जो शो नहीं किया है, विल बी 0। इन दैट केस द ब्रिज इज बैलेंस्ड, ओके। तो ये तो हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज। ना हम जो प्रैक्टिकली डिवाइस व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं, उस डिवाइस का नाम है मीटर ब्रिज, okay. Now here I have shown a device which is actually a circuit of this device, इसको मैं मीटर ब्रिज कह रहा हूँ। Now अगर मैं मीटर ब्रिज को पहले आपको रियल apparatus में दिखाऊँ तो वो कैसा है, देखिए। Now you can see a 1 meter long wooden bridge, okay, some thick copper strips, यहाँ पर देखिए कॉपर स्ट्रिप दिखाई पड़ रही है, थिक कॉपर स्ट्रिप,
Here is a copper strip again, one more copper strip at this end, another copper strip is there at this end, है ना? And here I can see one small gap in between these two copper strips. Here again there is one more gap in between these copper strips, right? I am given two terminals to connect here. यहाँ मैं कोई सर्किट में कोई डिवाइस कोई ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर भी ऐसे ही मैं एक डिवाइस कनेक्ट कर सकता हूँ. एंड हियर इज वन मोर टर्मिनल वेयर आई कैन कनेक्ट समथिंग. And across these two copper strips, if you see carefully, there is one thin wire, along 1 meter long wire, and this wire is fixed on a meter scale. ये पूरी वायर जो दिखाई पड़ रही है आपको, इसकी लंबाई 1 मीटर है एग्जैक्टली, है ना? इसलिए इस डिवाइस का नाम हमने रखा ही है मीटर ब्रिज, बिकॉज द वायर वी हैव यूज्ड इज अ 1 मीटर लॉन्ग वायर. अच्छा, इस वायर की दो खास बातें और हैं. दो खास बातें क्या है कि इस वायर की थ्रू आउट द लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है. ये कहीं थिक है कहीं थिन है ऐसा नहीं है. दिस इज ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, एंड दिस वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म मटेरियल ऑल्सो. ऐसा नहीं कि उसका आधा हिस्सा आयरन का और आधा हिस्सा किसी और मटेरियल का है. पूरा वायर एक ही मटेरियल का है. एंड जनरली द वायर विच वी यूज हियर इज some manganese wire. If you remember, manganese was such a material which has high resistivities. मतलब इस वायर के पास रेजिस्टेंस है, राइट? इस वायर में हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस थोड़ा हो, और इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होने से क्या फ़ायदा हुआ कि अब रेजिस्टेंस और यूनिफॉर्म मटेरियल भी होने की वजह से क्या हुआ कि इस वायर का रेजिस्टेंस इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा. जितनी ज़्यादा लंबाई उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस वॉज रो विच इज रेजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब मटेरियल यूनिफॉर्म है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब रेजिस्टेंस अब सिर्फ किससे बदलेगा? लेंथ से. अगर मैं इसकी 50 सेंटीमीटर लेंथ को देखूं तो उसका एक रेजिस्टेंस है, 75 सेंटीमीटर लेंथ लूँ तो उसका अलग रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. Yeah? So there is one thin wire, some copper strips, two gaps. Okay? Let me compare this device and I have connected some circuits. You can see circuits connections कर दिए हैं गए हैं ऑलरेडी. तो मैं इस apparatus को उस सर्किट डायग्राम से कनेक्ट मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज से मैं कंपेयर करता हूँ. सो देखिए यहाँ पे आपके पास टर्मिनल है A, B, C एंड D. अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज में दिखाऊँ, मीटर ब्रिज में दिखाऊँ, तो यहाँ पर जो आपके पास देखिए कॉपर स्ट्रिप थी इस एंड पर, एक कॉपर स्ट्रिप यहाँ है, एक कॉपर स्ट्रिप यहाँ है. यहाँ पर एक गैप था और एक गैप यहाँ पर है. अब मैंने एक एंड का नाम इस वायर के एक एंड का नाम A लिख दिया है, जैसे यहाँ A लिखा था. एक पॉइंट यहाँ B मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, B यहाँ लिखा हुआ है, C यहाँ है तो C यहाँ पर है, D पॉइंट मैंने इस वायर पर एक पॉइंट को मार्क किया है. अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वेयर इज दिस पॉइंट D. Okay, now you see between A and B you have a resistance P. सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज में A और B के बीच में रेजिस्टेंस है P. यहाँ पर A और B के बीच में रेजिस्टेंस एक है R, जो कि एक रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है. नाउ इफ यू सी इन द मीटर ब्रिज, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है मैंने वो यहाँ लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया है. ठीक है, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच ये जो गैप है यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया. नो दिस इज कॉल्ड एज ए रेजिस्टेंस बॉक्स. ओके, अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स में आप ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं. देयर आर सम वैल्यूज़ रिटन लाइक 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm एंड सो ऑन अप टू 100 ohms, है ना. एंड देयर आर सम कीज हियर. व्हेन दीज कीज आर इंसर्टेड that means that resistance is not connected in the circuit. When I suppose plug out one key, the key which I have plugged out is from the point where it is written 2, that means I have inserted a resistance of 2 ohms. तो की लगाना मतलब सर्किट से रेजिस्टेंस हटाना, की निकालना मतलब सर्किट में रेजिस्टेंस लगाना. ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस चूज़ कर सकता हूँ. तो इस गैप के अक्रॉस मैं यहाँ पर इस रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस चूज़ करने वाला हूँ उसका रेजिस्टेंस मुझे मालूम है. दैट मीन्स दिस इज़ अ नोन रेजिस्टेंस. ये हमारे लिए एक नोन रेजिस्टेंस है. तो लेफ्ट गैप में हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जो कि A और B के जैसा P था. यहाँ पर उसका नाम R बदल गया है. ठीक है, अच्छा. नेक्स्ट यहाँ पर B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस था Q. तो यहाँ पर देखिए B एंड C के बीच में एक रेजिस्टेंस है X. ये हमारे लिए एक अननोन रेजिस्टेंस है जो कि मैंने यहाँ राइट गैप में कनेक्ट किया. तो ये रहा राइट गैप, मीटर ब्रिज में ये राइट गैप है. तो इस जगह इफ़ यू सी ये मैंने एक
वायर, जो कि हमें पीस ऑफ वायर गिवन था, उसका रेजिस्टेंस जो हमें जानना है, ठीक है, ये हमारे लिए एक अननोन रेजिस्टेंस है, ये मैंने इस राइट गैप में लगा दिया। तो दिस रेजिस्टेंस सपोज इट इज नेम्ड एज एक्स, वो हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज में नाम है उसका क्यू इज सेम एज एक्स। ओके, ना यहाँ पर ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस था आर, जबकि सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस था एस। वो यहाँ कहाँ है? इसी यहाँ पर हमारे पास ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक एक वायर है। अब मैंने इस वायर के सपोज किसी पॉइंट को डी मार्क करके दो टुकड़े बना लिए, ठीक है, ए से डी तक का टुकड़ा और फिर डी से सी। तो ए से डी का जो टुकड़ा है उसकी लंबाई है मान लीजिए एल, इट्स लेंथ इज एल। तो जो बाकी हिस्सा है, क्योंकि पूरी वायर 1 मीटर है मतलब 100 सेंटीमीटर है, तो दैट मीन्स द अदर लेंथ इज 100 माइनस एल सेंटीमीटर। एंड अभी मैंने आपको बताया क्योंकि ये जो वायर है वो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगी वो इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी, है ना। अब अगर इस हिस्से का एरिया ऑफ, इस पूरे वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समथिंग कुछ है, ए है, तो इस पीस ऑफ वायर का रेजिस्टेंस मान लीजिए मैंने लिखा आर ए डी, तो वो रेजिस्टेंस होना चाहिए रो लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जो दूसरा हिस्सा है डी सी, उसकी लेंथ है अगर 100 माइनस एल, तो उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए रो 100 माइनस एल अपॉन एरिया, राइट। अब मान लीजिए पॉइंट डी जो मैंने यहाँ पर मार्क किया, वो कोई ऐसा पॉइंट मैंने ढूंढा इस वायर पर कि आर और एक्स का रेजिस्टेंस, दैट इज पी और क्यू का रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए डी, आर ए डी उसको मैंने लिखा है, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर लेंथ डी सी, जिसको मैंने आर डी सी लिखा है, कि ये रेजिस्टेंस रेशियो, ये रेजिस्टेंस रेशियो अगर इक्वल हो गए, दैट बिकम्स ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने क्या बताया था कि बी और डी के बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। तो बी और डी के बीच में देखिए यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया, तो वही सर्किट में यहाँ पर है। इस सर्किट में अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला पॉइंट हमारा बी है, जिसके थ्रू मैंने जिसके अक्रॉस मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, और इसके साथ मैंने एक जॉकी कनेक्ट की है, जो कि मैं इस वायर पे कहीं टच करके उस पॉइंट डी को ढूंढूंगा। हमारा काम उस पॉइंट डी को ढूंढना है, ठीक है। जहाँ ये पॉइंट डी मुझे मिल जाएगा, वो कैसे पता चलेगा डी आ गया? डी जहाँ पर आएगा वहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा। डी के अलावा, उस पॉइंट डी के अलावा कहीं और टच करेंगे तो वायर या तो गैल्वेनोमीटर या तो लेफ्ट डिफ्लेक्शन शो करेगा या राइट। हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। उस पॉइंट को हम कहते हैं बैलेंसिंग पॉइंट या समटाइम्स नल पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम उस नल पॉइंट पे पहुंच गए, मतलब उस समय क्या हो गया है कि रेजिस्टेंस आर और एक्स का रेशियो और रेजिस्टेंस ए डी और रेजिस्टेंस डी सी का रेशियो इक्वल हो गया है, तो हम कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, हमारा मीटर ब्रिज बैलेंस हो गया है। और अगर बैलेंस्ड है तो देखिए थियरी के अनुसार क्या था कि अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 है तो आर और एक्स का रेशियो, ठीक है, आर ए डी और आर डी सी का रेशियो, मतलब दिस लेंथ एंड दिस लेंथ का रेशियो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और आर ए डी और आर डी सी क्या था? रो एल अपॉन ए, अब रो 100 माइनस एल अपॉन ए। यहाँ देखिए रो और ए तो कांस्टेंट थे, ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा? आर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एल अपॉन 100 माइनस एल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स विल बी 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। अब इस फॉर्मूले में, ये हमारा वर्किंग फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आर हमें नोन है, मैंने कहा हम चूज़ करेंगे उसकी वैल्यू को, हम पर्टिकुलर आर को चूज़ करके वो पॉइंट ढूंढेंगे, मतलब वो लेंथ ढूंढेंगे हम अपने सर्किट में कि जहाँ ये ब्रिज बैलेंस हो जाए। तो एल ढूंढेंगे हम एक्सपेरिमेंटली, आर हम चूज़ करेंगे। सो वंस आई नो द वैल्यू ऑफ आर एंड एल, एक्स कैन बी कैलकुलेटेड। यू विल सी कि जब मैं डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आर चूज़ करूँगा तो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एल मिलेंगी, बट हर बार मैं आर और एल को सब्स्टिट्यूट करूँगा तो एक्स सेम मिलेगा, वो हमारे लिए अननोन रेजिस्टेंस होगा। हम 3 और 4 और रीडिंग्स लेकर हम उनका मीन निकालेंगे, दैट विल बी द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ दिस। चलिए समझ में आया आपको? ठीक है, लेट अस सी, मैं इसकी वर्किंग करके दिखाता हूँ। तो मैंने देखिए एक सेल कनेक्ट किया हुआ है, जो मैंने सेल यहाँ दिखाया है, ए से लेकर सी के बीच में जो सेल कनेक्ट करना था, तो ये रहा वो टर्मिनल ए। देखिए सेल का मैंने एक टर्मिनल कनेक्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसमें बिल्कुल बॉदर नहीं करें कि पॉजिटिव कहाँ कनेक्ट करें, नेगेटिव कनेक्ट कहाँ करें, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो ज़ीरो डिफ्लेक्शन करवाना है। तो मैंने एक सेल का टर्मिनल यहाँ कनेक्ट किया, ये रहा सेल का नेगेटिव टर्मिनल जो कि जिंक रॉड है। मैं इसको सोल्यूशन में जब डिप कर देता हूँ तो अब सर्किट हमारा सेल कनेक्ट हो गया है, लेकिन सेल को अभी भी मैंने
एक की के थ्रू डिस्कनेक्ट करके रखा है। तो व्हेन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द रीडिंग्स, तब मैं इस की को यहाँ पर प्लग इन करूँगा। ठीक है, प्लग इन करना मतलब सर्किट ऑन, प्लग आउट कर देना मतलब सर्किट ऑफ। ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम कि ये जो रेजिस्टेंस वायर है कितने ओम्स का है। मैंने ऐसे कोई टुकड़ा काट कर दे दिया आपको, तो इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। ठीक है, अब कहाँ से शुरुआत करें? ज़ीरो तो नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड कि इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो तो नहीं है। अगर मैं यहाँ जानता हूँ कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो अब मैं अगर यहाँ लेफ्ट गैप में जहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस ना लगाऊँ, मतलब यहाँ ज़ीरो रेजिस्टेंस है, ये ज़ीरो है और ये एक फाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो मैं अब देख रहा हूँ कि ये तो बैलेंस हो नहीं सकता। ज़ीरो हो और ये फाइनाइट रेजिस्टेंस हो तो बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ मिलेगा? बिल्कुल एंड पर जाकर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी रेशियो 0 to समथिंग होना चाहिए, तो मतलब बैलेंसिंग लेंथ बिल्कुल 0 पर जाएगा। लेट मी चेक इट, कैसा हो रहा है। ठीक है, मैं सर्किट को अगर स्विच ऑन करता हूँ, देखिए मैंने सर्किट को स्विच ऑन कर दिया और मैंने यहाँ इस समय कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि सारे कीज़ टाइटली फिक्स्ड हैं। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ अभी मैंने कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया। लेफ्ट गैप में ज़ीरो रेजिस्टेंस, राइट गैप में एक फाइनाइट रेजिस्टेंस। बैलेंस कहाँ होगा? लेट मी चेक। गैल्वेनोमीटर पे ध्यान दीजिए। हाँ, मैं अगर गैल्वेनोमीटर मीटर बिच को टच करता हूँ तो मुझे राइट डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है, और पास जाता हूँ और कहीं जाता हूँ अभी भी राइट डिफ्लेक्शन हो रहा है, अभी भी राइट डिफ्लेक्शन है। मैं इस पूरी वायर पे जहाँ पर भी जाता हूँ, हाँ, मैं इस एंड पर पहुँचता हूँ तो देखिए शायद ज़ीरो डिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। मतलब ज़ीरो लेंथ और 100 - L मतलब 100 सेंटीमीटर लेंथ। करेक्ट है, ऐसे ही होना भी चाहिए था, इज़न्ट इट? तो ये रेजिस्टेंस मैं क्योंकि जानता हूँ कि 0 ओम्स का तो नहीं है, ये रेजिस्टेंस 0 ओम्स का नहीं है, तो मैंने यहाँ 0 से शुरुआत की। लेट मी स्टार्ट कि नेक्स्ट वैल्यू मैं चूज़ करता हूँ सपोज 1 ओम इन द रेजिस्टेंस बॉक्स, कि क्या ये 1 ओम तो नहीं है कहीं। हाँ, अगर ये 1 ओम हुआ, मान लीजिए रेजिस्टेंस हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है अगर 1 ओम है, तो मैं अगर रेजिस्टेंस बॉक्स में से 1 ओम चूज़ करूँ, हाँ, यहाँ पर मैं चूज़ करने जा रहा हूँ 1 ओम। देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स में ये वैल्यू है 1 ओम, तो मैं अगर यहाँ पे 1 ओम चूज़ करूँ और अगर ये भी रेजिस्टेंस जो हमारा अननोन है अगर ये 1 ओम हुआ, तो ये रेशियो 1:1 का हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर बैलेंस कहाँ होना चाहिए? इसको बिल्कुल मिड पॉइंट पर होना चाहिए, मतलब 50 सेंटीमीटर मार्क पे बैलेंस होना चाहिए। तो लेट मी चेक, क्या ये 50 सेंटीमीटर मार्क पे बैलेंस हो रहा है? मैं जब 50 सेंटीमीटर मार्क पर आता हूँ, देयर इज़ ए 50 सेंटीमीटर मार्क, मिड पॉइंट पर जब मैं आता हूँ, व्हेन आई टच इट, देखिए सर्किट को ऑन नहीं किया मैंने, स्विच ऑन कर देता हूँ मैं। अब मैं जब 50 सेंटीमीटर मार्क को टच करता हूँ, आई सी राइट साइड डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स ये 1 ओम नहीं है। और जब मैंने यहाँ पर ज़ीरो रेजिस्टेंस लिया था तब भी राइट डिफ्लेक्शन आ रहा था। इससे मैं एक चीज़ जज कर सकता हूँ कि जो मेरा अननोन रेजिस्टेंस है वो 1 ओम तो नहीं है, लेकिन ये 1 ओम से ज़्यादा है। कैसे पता चल रहा है? कि जब मैंने वहाँ ज़ीरो रेजिस्टेंस लिया था डिफ्लेक्शन राइट था, और अभी जब मैंने 1 ओम लिया अभी भी डिफ्लेक्शन राइट ही है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हम इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी कि ये 1 ओम से ज़्यादा है। तो लेट मी ट्राई 2 ओम देयर। ठीक, ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मैं चूज़ करता हूँ वो है 2 ओम। ना रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस चूज़ किया वो है 2 ओम। लेट मी सी। अब मैं 50 सेंटीमीटर मार्क पे दोबारा चेक करता हूँ। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस 2 ओम से कम हुआ तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 ओम पे राइट था। अगर 2 ओम से पे लेफ्ट हो गया तो हम ये जज कर लेंगे कि ये रेजिस्टेंस 2 ओम से कम है। लेट मी ट्राई। मैं जब अब 50 सेंटीमीटर निशान पे टच करता हूँ, आई सी अगेन राइट साइड डिफ्लेक्शन। इससे क्या जज हुआ कि ये अननोन रेजिस्टेंस 2 ओम से भी ज़्यादा है। तो लेट मी ट्राई 3 ओम। ठीक है, तो 3 ओम। अब मैंने 1 और 2 दोनों निकाल दिए। नाउ इट इज़ इन सीरीज, मतलब ये एक 3 ओम रेजिस्टेंस। लेट अस ट्राई अगेन। मैं 50 सेंटीमीटर निशान पे फिर टच करता हूँ एंड आई सी ए राइट साइड डिफ्लेक्शन। लेकिन अब डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा है, इसका मतलब हम पहुँच रहे हैं नज़दीक उसके। तो 3 ओम से भी वो अभी ज़्यादा है। अननोन रेजिस्टेंस इज स्टिल मोर देन 3 ओम। तो लेट मी ट्राई अ 4 ओम रेजिस्टेंस। मैं 2 ओम का और एक 2 ओम दोनों का की निकाल लेता हूँ। नाउ दिस इज 1 ओम मैंने इंसर्ट कर दिया है, तो दिस इज 2 ओम। 2 ओम मीन्स नाउ आई हैव इंसर्टेड ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। लेट मी ट्राई कि अब बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर पर क्या ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करता है? व्हेन आई टच एट 50 सेंटीमीटर मार्क, नाउ आई सी ए स्मॉल लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन। अब ये लेफ्ट होने का मतलब क्या हुआ?
कि ये रेजिस्टेंस वायर 4 से थोड़ा कम है। तो अब हम एक जजमेंट पे पहुंच गए हैं कि दिस रेजिस्टेंस इज लेस देन 4 ओम, सॉरी लेस देन 4 ओम बट मोर देन 3 ओम। अब 3 और 4 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, 3.1 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 3.9 हो सकता है, ठीक है। अब हम कैसे जज करेंगे ये 3 से ज़्यादा है 4 से कम है तो कितना है, ठीक है। अब जैसे मैंने देखा कि जब मैंने 3 ओम्स चूज़ किया था, मैंने दोबारा 3 ओम्स चूज़ किया तो मैंने देखा डिफ्लेक्शन 50 सेंटीमीटर पे टच करने पर राइट साइड आ रहा है। मुझे मालूम है कि वो रेजिस्टेंस 3 ओम से ज़्यादा है। अगर वो 3 ओम से ज़्यादा है, यहाँ लेफ्ट में रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो यहाँ की बैलेंसिंग लेंथ भी कम होनी चाहिए, वहाँ वाली लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं 50 सेंटीमीटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्ट करता हूँ, कहीं ना कहीं ये बैलेंस हो जाएगा। मतलब ये लेस, ये वाला कम है, ये ज़्यादा है, तो मैं यहाँ वाला भी कम कर दूँ, यहाँ ज़्यादा कर दूँ। तो मैं इसको 50 सेंटीमीटर से शिफ्ट करता हुआ 49 आता हूँ, ठीक है, 30 47 46 एंड मैं देख रहा हूँ 46 पर डिफ्लेक्शन राइट अभी हल्का सा है, 45 45 एंड 45.5 पर मुझे दिख रहा है कि व्हेन आई एम टचिंग इट, डिस्कनेक्टिंग इट, टचिंग इट, डिस्कनेक्टिंग इट, नो डिफ्लेक्शन। तो मुझे मिल गया 45.5 पर नल पॉइंट। When I am having a resistance of 3 ohm in the left gap, unknown resistance in the right gap, तो मुझे मिला 45.5 as the balancing point। तो लेंथ L मतलब 45.5 है, तो लेंथ 100 minus L will be 45 point minus 100 minus 45.5 54.5। तो हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल में हम ये रिकॉर्ड कर लेंगे कि मेरे पास जो नोन रेजिस्टेंस था, नोन रेजिस्टेंस R जो था वो मैंने चूज़ किया 3 ओम्स, ठीक है। तो बैलेंसिंग लेंथ क्या मिला मुझे, बैलेंसिंग लेंथ L क्या मिला, क्या मिला 45.5 ओम्स। तो हम अननोन रेजिस्टेंस X आप कैलकुलेट कर सकते हैं, isn't it? Substituting the value of L, substituting the value of R, X can be calculated. Am I right? Yes. This is one reading. तो I must take some more readings. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे दिखाई पड़ा कि 3 और 4 के बीच लगभग इसका रेजिस्टेंस है, तो यू शुड ट्राई कि जो मुझे मालूम चल चुका है कि इसका रेजिस्टेंस लगभग 3 और 4 के आसपास है, तो मुझे लेफ्ट गैप में जो नॉन रेजिस्टेंसेस चूज़ करने चाहिए वो भी इन्हीं के आसपास चूज़ करने चाहिए, ठीक है। मतलब आई में चूज़ 3 ओम, जैसे मैंने यहाँ 3 ओम लगाकर भी बैलेंसिंग लेंथ चूज़ किया। अब मैं 4 चूज़ कर लेता हूँ, आई नो कि ये वाला रेजिस्टेंस 4 से थोड़ा सा कम है। 4 से जब थोड़ा कम है, सी मैं जब इधर 4 ओम्स लगाता हूँ, जब मैंने यहाँ पर 4 ओम्स का रेजिस्टेंस चूज़ किया, ये 4 ओम्स है, लेकिन वो रेजिस्टेंस 4 ओम से कम है। दैट मीन्स ये वाला रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये वाला रेजिस्टेंस कम है। अब मैं 50 सेंटीमीटर पर देखूंगा तो बैलेंस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो मुझे किधर शिफ्ट करना चाहिए इस बार, ये वाली लेंथ को बढ़ाना चाहिए, तो मैं राइट साइड शिफ्ट हो जाता हूँ। तो मैं 51 पर देखता हूँ, अभी भी लेफ्ट है, 52 पे ट्राई करता हूँ, 53 पर ट्राई करता हूँ, ठीक है। सी मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे से टच करता हूँ। आई शुड नॉट रब इट ऑन दिस वायर, आई शुड नॉट प्रेस इट ऑन द वायर, दोनों में से कुछ भी नहीं करना है, आपको धीरे से बस टच करना है, आपको सर्किट कनेक्शन बनाना होता है, ठीक है। आई ट्राइड 52, आई सी ए लेफ्ट डिफ्लेक्शन, माइन्यूट लेफ्ट डिफ्लेक्शन, 53 स्टिल लेफ्ट है, मैं 53.5 ट्राई करता हूँ, राइट जा रहा है। तो 53 पर मुझे दिख रहा है ऑलमोस्ट नल डिफ्लेक्शन है, 53 इस बार। सो आई टेक दिस रीडिंग अगेन, मैं इस रीडिंग को ले लेता हूँ कि जब मैंने यहाँ पर 4 ओम लगाया तो मुझे रीडिंग मिला लेंथ 53.53 सेंटीमीटर, दिस इज इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। यू कैन ट्राई सम मोर रीडिंग्स कि मैंने जैसे 3 लिया, 4 लिया, रीडिंग्स ले ली, आप 3 के आसपास ही रहिए, तो आप वहाँ पर एक 2 ओम के लिए चूज़ कर लीजिए, ठीक है, या फिर 4 के आगे यहाँ पर आप एक 5 ओम्स के लिए चूज़ कर लीजिए। देखिए मैं अगर 2 ओम चूज़ करता हूँ तो मेरी बैलेंसिंग लेंथ और कम आएगी। अभी मैंने सिर्फ एक 2 ओम रेजिस्टेंस चूज़ किया,
है ना। तो देखिए 3 ओम पर मेरा बैलेंसिंग लेंथ 45.5 आया था, अगर मैं 2 चूज़ करता हूँ वहाँ पर तो आई फाइंड 45.5 पर अब राइट डिफ्लेक्शन जा रहा है, मुझे और छोटा लेंथ लेना पड़ेगा, मैं और पास छोटे लेंथ की तरफ जा रहा हूँ एंड आई फाइंड 40 पर भी राइट साइड डिफ्लेक्शन है, 38 पर भी, 37, हाँ 36 एंड आई फाइंड समवेयर एट 36 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन 0 है। क्लियर हो रहा है? तो मैं वहाँ पर नोट कर लूँगा 2 ओम नॉन रेजिस्टेंस, व्हेन द रेजिस्टेंस वाज 2 ओम हियर, रेजिस्टेंस बैलेंसिंग लेंथ इज 36। अब मैं एक हायर वैल्यू पे चले आता हूँ, मतलब मैं एक 5 ओम रेजिस्टेंस चूज़ करता हूँ, तो 5 ओम पर रेजिस्टेंस और ज़्यादा आना चाहिए, तो 5 ओम देखिए ऑलरेडी यहाँ पर एक दिया हुआ है आपको, this is already given a 5 ohm resistance on the meter on the resistance box 5 ohm, तो I have chosen a 5 ohm resistance। naturally इस बार बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर की राइट जाएगा, ठीक है, मतलब वो इस बार 53 से भी ज़्यादा जाना चाहिए। तो लेट मी ट्राई 53 पर क्या शो हो रहा है, 53 पर मैं देखता हूँ लेफ़्ट डिफ्लेक्शन, तो मैं 55 पर जाता हूँ, ठीक है, 56, 57, 58 एंड आई फाइंड 58.5 इज़ नल डिफ्लेक्शन, 58 पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मेरे पास एक चौथी रीडिंग आ गई, दैट इट इज़ 5 ओम, 58.5 सेंटीमीटर। सो फॉर ऑल दीज वैल्यूज आई विल फाइंड आउट सम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स जो मिलेगा, यू विल फाइंड आउट एक्स विल बी ऑलवेज ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा बहुत वेरिएशन जो हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर्स की वजह से जो डिफरेंसेस आ जाते हैं, इसीलिए हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, एंड देन व्हेन यू फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज, फाइंड आउट द मीन रेजिस्टेंस, दैट मीन विल बी योर अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। बट माय टारगेट वाज टू फाइंड आउट not only the resistance, my target was to find out its resistivity। now you have to do 2 more tasks। one is आपने यहाँ पर इसका unknown resistance calculate कर लिया, suppose the value of unknown resistance you got as something x, है ना। now the next thing is कि आपको एक screw gauge लेना है, you know very well in class 11th आपने पढ़ा है, screw gauge से इस वायर का diameter find out करिए, ठीक है, maybe again 3 or 4 times find out the diameter at different positions and find out the mean diameter or mean radius, and then you will calculate the area of cross section as pi r square of that wire, है ना। and then take out this wire from this meter bridge and see where did you connect, है ना, these 2 ends जहाँ पर ये ends connections के साथ थे, है ना, and straighten this wire, इसको stretch करके straighten कर लीजिए, ठीक है, इसको सीधा करना है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपको इस वायर को, एंड जो कनेक्टिंग एंड्स थे वो वहीं रखना है, एंड मेजर इट्स लेंथ, रफ लेंथ ही मेजर करेंगे, दिस इज़ 1 मीटर वायर, मैंने आपको जानबूझ के एक 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर दी थी, सो द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 1 मीटर, तो द लेंथ इज़ गिवन टू यू इज़ 1 मीटर, ठीक है, और 1 मीटर, ठीक है, रेडियस भी जो आप कैलकुलेट करेंगे आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, substitute it in your formula that r is equals to होता है x will be equal to the rho resistivity of this wire times the length of the wire divided by its area of cross section means pi r square, ठीक है, L is known, R is known, x you have calculated, rho can be calculated, okay, rho can be calculated, so that is how you do this experiment, clear। अच्छा, इसी एक्सपेरिमेंट के साथ मैं आपको 2 और एक्सपेरिमेंट्स बताता हूँ, ठीक है, बाकी पूरा प्रोसीजर वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर आपको 2 रेजिस्टेंसेस दिए जाएंगे, सेम प्रिंसिपल, ठीक है, तो इसलिए मुझे प्रिंसिपल दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई एम गिविंग यू सपोज 2 रेजिस्टेंसेस, अज्यूम दैट दे आर अननोन टू यू, ऑल्दो इट इज़ रिटन ऑन देम, लेट अस अज्यूम कि दे आर नॉट नोन टू मी, एंड लेट अस कॉल वन ऑफ द रेजिस्टेंस एज R1, another resistance is R2, these are resistance coils, ठीक है, although they are known resistance values with a known value, but I am assuming this is a unknown resistance, ठीक है, तो let this is resistance 1 R1 and this is resistance 2 R2, ओके, तो बिल्कुल यही प्रोसीजर होगा हमारा रीडिंग्स लेने का, सब कुछ हम यहाँ पर एक टेबल जो बनाएंगे वो ये होगा, तो टेबल फॉर रेजिस्टेंस R1, पहले हम टेबल फॉर रेजिस्टेंस R1 बनाएंगे, ओके, और हम लेफ्ट गैप में जो नोन रेजिस्टेंस लगाएंगे, नोन रेजिस्टेंस, ठीक है, लेफ्ट गैप में जो नोन रेजिस्टेंस लगाएंगे दैट इज R,
ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे वो है L, और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे जो अननोन रेजिस्टेंस वो है R1, उसका नाम हमने R1 लिखा। तो मैंने जहाँ पर पहले अभी एक अननोन रेजिस्टेंस वायर लगाया था वहीं पर मैं इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ, इस रेजिस्टेंस कॉइल को लगा देता हूँ। सी, मैं इसको ओपन करके यहाँ राइट गैप में इस अननोन रेजिस्टेंस को लगा रहा हूँ। Assume it is unknown resistance, although it is written as 5 ohm. ठीक है, सेम मेथड, सेम जो एक्सपेरिमेंट अननोन के लिए आपने किया, आपको इसका एक बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करके डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर चूज करके इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, एज आई कैन सी कि ये 5 ओम है, तो लेट मी ट्राई हियर 5 ओम रेजिस्टेंस। देखिए मैंने यहाँ 5 ओम रेजिस्टेंस लगा ही रखा है। ठीक है, मैं जब अब सर्किट को ऑन करके देखता हूँ, आई फाइंड मैं अगर राइट साइड में कहीं एक्सट्रीम राइट जा रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन है। ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट में कहीं जा रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट है। व्हेन आई गो एट 50 सेंटीमीटर मार्क, सी 50 सेंटीमीटर मार्क पे डिफ्लेक्शन 0 है। दैट इज बिकॉज कि ये 5 ओम लेफ्ट गैप में भी है, राइट गैप में भी 5 ओम है, तो बैलेंसिंग लेंथ 50 आना ही चाहिए था। ठीक है, तो आई मे ट्राई सम मोर रेजिस्टेंसेस। 4 ओम चूज कर लीजिए, यहाँ पर 6 ओम चूज कर लीजिए, या फिर 3 ओम चूज कर लीजिए, 7 ओम चूज कर लीजिए। फाइंड आउट द न्यू बैलेंसिंग लेंथ्स, और उन न्यू बैलेंसिंग लेंथ से आप इस वैल्यू को फाइंड आउट करें। दैट विल बी नोटेड डाउन एज R1. Similarly, replace this resistance by another resistance now, R2. ठीक है, अगेन मेक सिमिलर ऑब्जर्वेशन टेबल, फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस R2. तो दो रेजिस्टेंसेस आपने फाइंड आउट कर लिए, R1 एंड R2. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू इज कि मैं इन दोनों रेजिस्टेंस वायर्स को एक सीरीज में कनेक्ट करता हूँ। देखिए मैंने इस जॉइंट से इस वायर को कनेक्ट किया, इसके साथ सीरीज में मैं इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ, सीरीज में। ठीक है, लाइक दिस, एंड एक कनेक्टिंग वायर की हेल्प से मैं इसको, ये दोनों अब एक ब्रांच में कनेक्टेड हैं, सो नाउ दे आर इन सीरीज। सी, दे आर इन सीरीज, एंड देन आई कनेक्ट इट अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, दिस गैप। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस मिलकर अब टोटल 15 ओम हो चुका होना चाहिए, है ना? इज इट रियली 15 ओम? अगर ये 15 ओम हम इससे मेजर करके देख सके तो हमारा लॉ वेरीफाई हो जाएगा कि ये 5 ओम मिला था पूरी का, मतलब इस कैलकुलेशन को करने के बाद आपको 5 के आसपास मिलेगा, जो भी मिलेगा। इट्स नॉट कि अब 5 दिख रहा था आपका आंसर 5 ही आना चाहिए। योर आंसर में कम एज 5.2 ओम, आप 5.2 नोट करेंगे। इसका रेजिस्टेंस आपको अननोन मिला 9.8 ओम, ये इसको नोट करेंगे आप 9.8 ओम, जो भी मिलेगा आपको। नाउ आई कनेक्टेड देम इन सीरीज। सीरीज लॉ सेज दैट इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू शुड बी R1 प्लस R2, राइट? तो अब जितना रेजिस्टेंस है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ये 15 के आसपास है, तो मैं एक 15 ओम का रेजिस्टेंस चूज़ करके देखता हूँ। दिस इज 10 ओम, दिस इज 5 ओम, तो मैंने यहाँ पर 15 ओम चूज़ किया। व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि बैलेंसिंग लेंथ शुड बी एट 50 सेंटीमीटर मार्क, है ना? तो लेट मी ट्राई, मैं अगर राइट साइड चूज़ करता हूँ डिफ्लेक्शन टच करके, डिफ्लेक्शन इज एक्सट्रीम राइट, बिल्कुल लेफ्ट साइड जाता हूँ, डिफ्लेक्शन इज टूवर्ड्स लेफ्ट। वेरेज मैं अगर 50 सेंटीमीटर निशान पे टेस्ट करता हूँ, आई फाइंड द डिफ्लेक्शन इज 0. So that is how I can understand कि the combinations resistance is coming to as 15 ohm, which verifies my result कि R1 and R2 when added is equal to मतलब when connected in series is equal to the sum of the resistances. Clear? तो ऐसे आपको, तो इन दोनों को भी मिलाकर एक अननोन मतलब वो एक थर्ड ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, और वहाँ पर आप लिखेंगे R इक्विवेलेंट या R सीरीज, और वो आपका आंसर कितना आएगा, सपोज 15 ओम। तो आप वेरीफाई कर देंगे कि एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू RS, विच वेरीफाइज द सीरीज लॉ। ठीक है, अब एक बार आप और एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, लेकिन इस बार आप इन दोनों रेजिस्टेंसेस को कैसे कनेक्ट करने वाले हैं। देखिए मैं इस वायर को इस कॉइल को इधर से कनेक्ट करता हूँ इसी गैप में, और इसी गैप के पैरेलल में दूसरा कॉइल भी कनेक्ट करता हूँ। सी, ये कॉइल मैंने इस गैप में कनेक्ट कर दिया, एंड देन विद द हेल्प ऑफ वन मोर कनेक्टिंग वायर आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस रेजिस्टेंस ऑल्सो अक्रॉस द राइट गैप डायरेक्टली। सो कैसे कनेक्ट हो गई ये इस बार ये देखिए, दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस राइट गैप, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड अक्रॉस दिस राइट गैप। मतलब अगर मैं इसको आपको मीटर ब्रिज में दिखाऊं तो अक्रॉस दिस गैप आई हैव कनेक्टेड ए रेजिस्टेंस R1
एज वेल एज इसी के अक्रॉस मैंने एक रेजिस्टेंस R2 भी कनेक्ट कर दिया है ऐसा. सो नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड आई नो कि पैरेलल में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है. If this is 5 ohm and 10 ohm together, find out what is the resistance in parallel, what is the equivalent resistance in parallel. You will say it is 10 by 3 ohms. 10 by 3 means roughly 3.3 ohms, है ना. इसी मैं अगर यहाँ पर अब लगभग 3 ohms का ट्राई करूँ, रेजिस्टेंस वैल्यू 3 ohm ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि 3 ohm पर ये 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस नहीं होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस 3 है जबकि ये लगभग 3.3 है. तो ये वाला कम है तो मतलब बैलेंसिंग लेंथ 50 से कम आएगा. यू कैन चेक इट. मैं अब अगर 50 सेंटीमीटर पे ट्राई करता हूँ, आई फाइंड है राइट साइड डिफ्लेक्शन. तो मैं 50 से थोड़ा स्मॉलर लेंथ पे जाऊँगा कहीं पर तो ये मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिल जाता है. ठीक है. और अगर मैं यहाँ पर 4 ohm ट्राई करता हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर 4 ohm कर दिया होगा तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये रेजिस्टेंस कम है. अब बैलेंसिंग लिंक 50 सेंटीमीटर पे फिर नहीं होगा, लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स राइट साइड जाना चाहिए. देखिए मैं ट्राई करता हूँ, 50 सेंटीमीटर पर डिफ्लेक्शन लेफ्ट जा रहा है और मैं जैसे जैसे राइट जाता हूँ डिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पर फिर ज़ीरो हो जाता है. ठीक है. तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेज इन योर रेजिस्टेंस बॉक्स, वंस अगेन फाइंड आउट व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंड वेरीफाई कि द इक्विवेलेंट यू गॉट इट इज़ 1 upon R equivalent is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. हुआ कि नहीं? अगर हुआ तो आप लिख देंगे, आप कह देंगे कि दैट पैरेलल लॉ इज ऑल्सो वेरीफाइड. आई होप किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए. समझ में आ गया, ये वर्किंग समझ में आ गया इस पूरे एक्सपेरिमेंट का. सो देर आर 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इन दिस in your syllabus. One is to find out the resistivity of a given wire. Second is to find out to verify the series law of resistances. Will be given 2 resistances like this. अभी मैंने जो 2 दिए थे वो ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनेशन में आपको वही 2 मिलेंगे. You can be given any set of resistances. And then third is to verify the parallel. ठीक है. So that is all for this experiment.